We all have welcomed more of evolution, more of change in our day-to-day life. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਡੇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫॉर ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਸੋਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਫਰੀडम ਜੋ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਔਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੱਕ ਮੈਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਅ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬॉय ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਫਲਕਚੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਲਕਚੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਅਗਰ हिस्ट्री पढ़ के देख लो कोई ऐसा टाइम कोई ऐसा मोमेंट कोई ऐसी एसोसीएशन कोई ऐसा वॉलंटियर नहीं पूरे इतिहास के देखने को मिलता जिन्हें कभी विमेन के राइट्स वास्ते विमेन के हकों के लिए आवाज़ उठाई हो जो भी साड़ी कंडीशन में सुधार आया है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन के स्ट्रगल के नाल ही आया है ये बड़ा वड्डा पॉइंट है जोड़ा सानू नोटिस करना चाहिए जोड़ा सानू सोचने की लोड़ है अज की डेट के हर धर्म ने विमेन हर धर्म ग्रंथ ने हर होली स्क्रिप्चर ने विमेन को डिफरेंट टर्म्स के क्रिटिसाइज किया जिवें आप तुलसीदास के रामचरितमानस सुकराखंड पढ़ के देख लियो वो विमेन के उत्ते की कहता है ढोल गवार शूदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जे आप ज्यूज की कम्यूनिटी वाल जाकर देखिए उन्होंने विमेन के प्रति की थिंकिंग है वो कहते विमेन काफिर है जे आप शेक्सपीयर के हेलमेट की सोच वाल देखिए वो की सोच है फॉर अ विमेन वो कहते शी इज अ फ्रिलिटी ये कमजोरी है जे आप पुराण पढ़ के देख ले जो हिंदुइज्म का स्क्रिप्चर है वो विमेन के उत्ते की लिखते हैं कहते हैं भी किसी औरत का पति भावें कैरेक्टरलैस हो भावें कुरूप हो भावें क्रिमिनल हो दुनिया का जिहड़ा मर्जी वो ऐप हो पर फिर भी औरत उन्हें परमात्मा के वांग पूजेगी पुराना कहता है कि औरत गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती पुराना कहता है कि औरत जनेऊ पान नहीं कर सकती जनेऊ एक संस्कार है इन हिंदुइज्म जिहड़े लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं जो उन्होंने जनेऊ संस्कार हो जाता मतलब कि वो पक्के हिंदू हो गए हैं जे आप इस्लाम धर्म में देखिए वो की कहते हैं उन्हें इस्लाम धर्म यह कहता है कि औरत को हमेशा पर्दे के रहना चाहिए इस्लाम धर्म यह कहता है कि औरत कभी नमाज पढ़ने वाले की अगवाई नहीं कर सकती इस्लाम धर्म यह कहता है कि औरत कभी मस्जिद के इमाम नहीं बन सकती वो वॉट इज़ इमाम जिवें गुरुद्वारे के ग्रंथी होंगे ने चर्च के गॉड फादर होंगे ने इदा ही मस्जिद के इमाम होंगे ने जिन्होंने आप रिलीजियस लीडर भी कह सकते हैं नो डाउट कि आज विमेन को राइट टू एजुकेशन है नो डाउट कि आज विमेन को राइट टू वोट है नो डाउट कि विमेन को 33% कोटा रिजर्व भी है जॉब्स से नो डाउट विमेन को लीगल राइट्स ने बट स्टिल समाज के विच वो सम्मानता और रिस्पैक्ट विमेन को नहीं दी जा रही जिहदी वो हकदार है जो डिजर्व करती है सिर्फ वैसटर्न कल्चर तो सिखिज्म के जेंडर इक्वालिटी मैन एंड वुमेन की बराबरता की गल की गई है
सब तो पहला गुरु नानक साहिब जी ने विमेन के हक के आवाज़ उठाई सी ते कोट किया से सो क्यों मंदा आखिए जम्मे राजान भी जिस विमेन ने तुसी क्रिटिसाइज करते हो, जिस विमेन ने तुसी विक्टिम करार किया होया। एक राजा भी उसकी कुख च जन्म लैंदा है, एक राजा भी औरत की कुख च जन्म लैंदा जिहड़ा कि किंगडम के उत्ते रूल करता है। फिर कहने तो भाव कि एक जन्मदाता रब है, उस तो बाद एक पावर एक औरत नूं रब ने बख्शिश की है। सो औरत भी रब का अंश है तो साडी रिस्पोंसिबिलिटी है उसकी रिस्पैक्ट करना। गुरु अमरदास जी का समय आया उदों सती प्रथा सी। अगर औरत अपने जिंदे जी विधवा हो जाती सी, विडो हो जाती सी, तो औरत नूं भी अपने पति की चिता दे विच जलना पैंदा सी। बट गुरु अमरदास जी ने सब तो पहला सती सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई सी। पर बड़े दुख की गल है कि साडी टैक्सट बुक्स के सानू यह पढ़ाया जाता है कि राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट, बट नो, गुरु अमरदास जी वॉज द फर्स्ट हू रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट सती सिस्टम। गुरु अमरदास जी ने घुंड कट्टन के उत्ते रोक लाई। गुरु अमरदास जी ने रीमैरिज का कॉन्सैप्ट शुरू किया कि अगर मैन रीमैरिज कर सकता है तो विमेन भी जो इस तरह के इंसीडेंट्स, इस तरह की ट्रैजेडीज की शिकार हो जाती है तो वह भी रीमैरिज कर सकती है। गुरु अमरदास जी ने सब तो पहले रीमैरिज की प्रथा शुरू की थी। बट विमेन्स के उत्ते कभी वितकरे बंद नहीं हुए। सो इन्होंने वितकरिया के बेसिस से एक यूनाइटेड स्टेट्स के 18th सेंचुरी के 51 विमेन से इकट्ठ के नाल एक सोशल मूवमेंट शुरू होती है जिन्हों नाम दिता गया फेमिनिज्म। तो बहुत सारे लोग इस टर्म के नाल फैमिलियर भी होंगे तो बहुत अनफैमिलियर भी होंगे। फेमिनिज्म नूं आपां पंजाबी दे विच नारीवाद भी कह सकते हैं। फेमिनिज्म एक सोशल मूवमेंट है जिहड़े कि विमेन के सोशल, इकोनॉमिकल ते पोलीटिकल राइट्स के लिए संघर्ष करती है। फेमिनिज्म की बहुत सारी वेव्स देखने को मिलियां। फर्स्ट वेव जी सी 19th ते 20th सेंचुरी के आई जिहदे विमेन के वोट पाने के हक के लिए संघर्ष किया गया। सैकेंड वेव जिहदे विमेन के सोशल ते लीगल राइट्स के लिए हक लिए संघर्ष किया गया। थर्ड वेव 1990s के आई जिहड़ी कि कॉन्टीन्यूएशन सी ऑफ सैकेंड वेव। फोर्थ वेव 2012 के आई तो अज आपां नूं पीक ते भी कह सकते क्योंकि पिछले कुछ सालों तो पूरे समाज, पूरे वर्ल्ड दे विच जेंडर इक्वालिटी नूं लैके बहुत वड्डी डिबेट, बड़ा वड्डा संघर्ष छिड़िया होया है। तो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जेंडर इक्वालिटी ते वुमेन इंपावरमेंट के उत्ते फोकस करती है। बहुत सारे लोगों ने फेमिनिज्म के टर्म नूं मिस इंटरप्रेट किया भी शायद भी एक सोर्स है वुमेन डोमीनेशन ने आता। बट मैं इस गल को क्लीयर करना चाहूँगी कि फेमिनिज्म का सिर्फ और सिर्फ मोटो है कि विमेन्स नूं वो हक, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलन, और रिस्पैक्ट दी जाए समाज वालों जो एक मैन नूं दी जाती है। इस तो इलावा फेमिनिज्म का होर कोई मोटिव नहीं है। तो जिथे जेंडर इक्वालिटी की गल होंदी है, नो डाउट कि फेमिनिज्म जो आप इस लहर के बारे गल करते हैं ये ज़्यादा गल विमेन के हक की या विमेन की दशा के बारे की जाती है। पर जो गल जेंडर इक्वालिटी की आती है वो तो सिर्फ विमेन के हक की गल नहीं हो रही। आज जेंडर इक्वालिटी जिन्ना विमेन्स का इशू है उन्हें मैंस का भी इशू बन चुका हुआ है क्योंकि साढ़े यंग मैन, साढ़े नौजवान पिछले कुछ सालों तो बहुत ज़्यादा मैंटल इलनेस के लाइक डिप्रैशन के शिकार हो रहे हैं जिहदे नाल यंग मैन से सुसाइड केसेस बहुत देखने को मिले। ऐसा की रीज़न है कि यंग मैंस मैंटल इलनेस से, नौजवान मैंटल इलनेस से शिकार हो रहे हैं? उसका रीज़न यह है कि जो समाज के असी थ्योरीज, जो फिलोसफीज लिया रख दियाँ, एक मर्द की डेफिनेशन लिया रखती कि मर्द वो है जिहड़ा अपने दुख को छुपा के रखता है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द वो है जिहड़ा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मर्द वो है जिहड़ा कि एग्रेसिव है, जिहड़ा धौंसगिरी वाला स्वभाव है। यह जो फिलोसफीज है, जो थ्योरीज ने, इसका कारण है मैंटल इलनेस। अगर मैनू एक गल समझ आ जाए कि both men and women should feel free to be sensitive, both men and women should feel free to be strong, अगर एक मैन अगर अपनी फिलोसफी से थ्योरीज को चेंज कर दे, अगर मैन नू भी फ्रीडम है, जो मैन भी इमोशनल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपने इमोशंस, अपने दुख मैन भी मदद सीख कर सकता है क्योंकि विमेन सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर लेंगे। इस तरह से कहने विमेन स्ट्रॉन्ग है, मैन अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि असी मैन की मर्द की थ्योरी बनाई हुई, मर्द की डेफिनेशन बनाई कि मर्द वही है जोड़ा कि अपने दुख छुपाता है, अपनी फीलिंग्स छुपाता है, अपने इमोशंस छुपाता है। इस करके विमेन वीक है, मैन स्ट्रॉन्ग है। नो, both are men and women should feel free to be sensitive। जो मैन भी इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो मैन भी अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे
खुशी की फीलिंग, दुख की फीलिंग, अपने सारे इमोशनस एक्सप्रैस करने च इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और सानू इक्वालिटी वाले मसले के उत्ते या जेंडर इक्वालिटी एज अ नैचुरल कंसीक्वेंस अपने आप ही समाज के आ जाएगी। फिर सानू संघर्ष करने की ये उत्ते बोलने की लोड़ नहीं पेगी, इन्होंने चीज़ों पर नोटिस करने की लोड़ नहीं पेगी। अगर मैन धौंसगिरी वाला सुभाव छड़ दे, उन्हें समझ आ जाए कि टू बी एक्सैप्टेड बाय द सोसाइटी जरूरी नहीं है एक मर्द के अंदर एग्रैशन होना चाहिए या धौंसगिरी वाला सुभाव होना चाहिए, तो वुमेन भी किसी दबाव जीने की कोई लोड़ नहीं हैगी। वुमेन शुड नॉट विल नॉट बी कंपेल्ड टू बी सबमिसिव। अगर अज तो ही असी अपने आप को इस तरह डिफाइन करने लग जाए कि हू वी आर, रैदर दैन अपने आप को इतना डिफाइन करने की बजाय कि साढ़े अंदर की कमियां ने, तो असी होर आज़ादी वाली जिंदगी जीने लग जाएंगे। वी विल बी मोर फ्रीयर। दिस इज़ वॉट आई फील। एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट, मैं सिर्फ अगर मैं कभी भी बीइंग अ फेमिनिस्ट आई एम स्पीकिंग ऑन फेमिनिज्म टुडे, सो मैं सिर्फ औरतों के इशूज़ नहीं बोलूँगी। आई एम विद मेन्स टू। मैं उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के इस इशू से उन्होंने नाल खड़ी हाँ। बोथ शुड हैव फ्रीडम टू फील फ्री सेंसिटिव, बोथ शुड हैव फ्रीडम टू एक्सप्रैस देयर इमोशंस। एक और चीज़ अस समाज के देखने को मिलती है कि अज जी वुमेन्स ने वो एक रेस के कितने ना कितने इंडल्ज हो चुके हैं, जिथे वो प्रूव करना चाहती ने भी नहीं असी मर्दा तो अगे हाँ। बट मैं कहूँगी कि रब ने जो कुछ क्रिएशनस ऐसिया ने जी कि मैचलैस ने, सानू प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि असी मर्दा तो अगे हाँ। सानू ऑलरेडी रब ने मैचलैस बनाया। यह चीज़ बड़ी अंडरस्टूड है, बड़ी यह चीज़ सारे समाज के विच पता है, पर प्रॉब्लम आके कितने आ जाती है कि समाज या सोसाइटी इस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करना चाहती। जो इस चीज़ को नैचुरली एक्सैप्ट कर लिया जाएगा एज अ कंसीक्वेंस, ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। गल तो एक्सैप्टेंस की है। सो अपनी एनर्जी इतने वेस्ट करने की बजाय, इस प्रूफ के वेस्ट करने की बजाय अपनी कैपेबिलिटीज़ होर बताइए, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करिए, एक लड़की को अपनी होंद का एहसास करवाइए कि हाउ इज शी इंपॉर्टेंट। सबनों पता है कि संसार मर्द तो बिना तो चल सकता है, पर औरत तो बगैर नहीं चल सकता। जिस दिन साड़ी सैक्स रेशो इम्बैलेंस्ड हो गई, उस दिन संसार रुक जाएगा। A man is incomplete without a woman. Everyone knows. The problem is कि the society accept नहीं करना चाहती है। जिस दिन आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन ये सारे सोशल मूवमेंट्स, ये सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। वुमेन अपने आप एक आज़ादी वाली जिंदगी जीने लग जाएगी। बाकी अपने घर के रहिए तो सेफ रहिए।